नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾ ਮਨਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਡੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਿਸ਼ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਆ ਦੱਸੋ, ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ एक्टिंग फील्ड। अब फर्क ही नहीं रह गया कि इन्फ्लुएंसर कौन है, कंटेंट क्रिएटर कौन है, मॉडल कौन है, आर्टिस्ट कौन है, एक्टर कौन है। ये पांचों चीजें ही अलग अलग है। जो एक आर्टिस्ट है ना, उसको आर्टिस्ट वाली इज्जत मिल नहीं रही। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚਾਹ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਫਲਕਚੁਏਟ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰੰਟ ਐਂਗਲ, ਬੈਕ ਐਂਗਲ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੈਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਰੀਲ ਹੋ गई ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ पहुंच गई। हमारे माँ बाप हमारे सर पर चढ़े रहते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम सुनते हैं। बड़े ਕਿੰਨੇ ਠੂਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਹੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। उसके अंदर अपने आप दिमाग नहीं है। ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ। मुझे नहीं पता था वहाँ पे शिव जी का मंदिर, और मैं शिव जी से ऑलरेडी इतनी कनेक्टेड हूँ, उनको देख के तो मुझे ऐसे हो जाता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, ऐसी फीलिंग होती है मेरे को तो भगवान शिव जी के लिए। तो मेरे अंदर से ना अपने आप ही निकल गया कि वो सामने है ना, वो अपने आप संभाल लेंगे। पता नहीं कैसे निकला, और मैंने जैसे ही मंदिर में कदम रखा मेरे आंसू बहना शुरू, 3 घंटे रोई वहाँ पे। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰੈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਿਤਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया इधर, और देखती हूँ मैं आप क्या क्या पूछोगे मुझसे। बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हेल्प कर सकूँ, कि शायद मेरी बातों से किसी की हेल्प हो जाए। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਚਾਹੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਜੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
हरियाणा में तो देखो वैसे ही है, इस फील्ड का छोड़ो। मतलब हरियाणा में ऐसी भी फैमिलीज है जो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में कितना नाम किया हुआ है लड़कियों ने, है ना। मानुषी शिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी हुई है, वो भी रोहतक भिवानी से है। लेकिन फैमिली को ये डर होता है कि उनको पता होता है कि बाहर वर्ल्ड कैसा है एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी काटी हुई है, वो ऐसे ही नहीं इतने बड़े हो गए हैं। तो ठीक है, फैमिली उस टाइम पे नहीं समझती, बट आप भी कुछ बनना चाहते हो, आपके अंदर एक करेज है कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो स्ट्रगल्स तो आएंगे और आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो आपको खुद से बुननी पड़ेंगी चीज़ें। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था। ਓਕੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ। मतलब रैंडम भी नहीं कह सकते, लेकिन वैसे नहीं सोचा था। किस बेस पे नहीं सोचा था, क्योंकि फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी। मेरे को था ही नहीं कि फैमिली कभी सपोर्ट करेगी, मुझे बाहर आने देगी, या मैं कभी एक्टिंग करूँगी, फिल्म्स करूँगी, फैशन वीक्स करूँगी, है ना। तो कभी सोचा ही नहीं था। बट पता नहीं, शायद मेरा रास्ता भगवान ने ऐसा लिखा हुआ था, ऑब्वियस है ना। हर चीज़ लिखी हुई है। बट शुरू में बड़ा स्ट्रगल आया, अपने भाइयों को मनाना, मेरे से बड़े ही हैं मेरे दोनों भाई, उनको मनाना, मम्मी को मनाना ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਨਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ? कि क्या करेगी, हमारे खानदान की लड़कियां ऐसे नहीं करती, हमारे खानदान की लड़कियां बाहर नहीं जाती, हमारे खानदान की लड़कियां नाचती नहीं हैं। वही थोड़ा सा था, अब तो नहीं है खैर, बट ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। हाँ टाइम के साथ समझ गए कि हाँ एक्चुअली क्या है, फैमिली अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहती, प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती, ये नहीं देखना चाहती कि उसका बच्चा कहीं सफ़र करे। ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ फाइनेंशियली ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। मैं तो आज भी नहीं मानती कि आर्टिस्ट लाइन या एक्टिंग लाइन फाइनेंशियली स्ट्रोंग है। अगर आप बिल्कुल टॉप पे भी पहुंच गए हो ना, तो कोई नहीं, कुछ नहीं पता आपको कि आप कब नीचे आ सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर नीयत, कि आपकी नीयत कैसी है। अगर आप लालच में, या आपके अंदर ईगो है, एक कोई भी एक नेगेटिविटी है, तो आप टिके नहीं रह सकते। आप ऊपर पहुंच तो सकते हो, लेकिन वहां टिकना बहुत मुश्किल है। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? दो पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स रखूंगी सामने। एक तो अगर आपको जो चीज़ आप चाह रहे हो अगर वो नहीं मिल रही है, तो दैट मीन्स अभी आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो। ओके। अगर आपको मिल भी जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे। तो अंडरस्टैंड दिस, आपको और ज़रूरत है आपके स्किल के ऊपर काम करने की, अपने ऊपर काम करने की। आपको अपने माइंड के अंदर, आपको मेंटली और फिजिकली स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड चीज़ कि मैं मानती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत से, इवन अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जो लालच देते हैं पैसों का, कॉम्प्रोमाइज़ का, और जैसे कि हम आपको ये बना देंगे, हम आपको वो दिला देंगे, ये गाना करा देंगे। मैं पहली बात बताऊँ, जिसको सच में काम करना होता है ना, चाहे वो डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, या कोई भी हो, एनी ऑफ देम, वो ऐसी बात करेगा ही नहीं, अगर जिसको सच में काम करना है। और जो आपको लालच दे रहा है ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसे तो आपको कोई नहीं, मैं सच बताऊँ, आप है ना, जब उसको थोड़ा करीब से जानोगे ना, वो खुद बेरोजगार बैठा होगा। और ये बात कड़वी है लेकिन सच है। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ऑफ कोर्स टैलेंट के साथ में मिलती है, प्लस आपको लिंक्स भी चाहिए होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ जो आपको बोल दे ना, दैट मीन्स वो बंदा आपके साथ काम करेगा ही नहीं, ये लिखवा लो आप। सिर्फ यूज़ करोगे? सिर्फ यूज़ करेगा। किसी के पास इतना टाइम है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोल के फिर आपको
ਹਾਂ ਇੰਨੇ कोई ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ लिंक, ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ वही ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। कोई लिंक है इस चीज का कि आप कॉम्प्रोमाइज करो फिर आपको प्रोजेक्ट दूंगा? इससे क्या टैलेंट आप देखना चाहते हो? मेरे को तो ये बताओ पहले। ਹੂੰ टैलेंट तो आपके अंदर है ना। आप, मैं सच बताऊं, आर्टिस्ट को, एक्टर को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि आप एक्चुअली में हो क्या, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो। आप, हमें भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी क्षमता मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमें सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ਹੂੰ जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो ना, अपनी स्किल के ऊपर काम करते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आपको नहीं है ज़रूरत किसी से भी हेल्प लेने की कि ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे ये दिला दो। क्यों नहीं करना? आप स्लो चल लो, धीरे चल लो, साफ चलो, नियत साफ रखो, अपनी स्किल के ऊपर काम करो। आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, भले ही देर से मिले। माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग ਹਾਂ और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, हम्म। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਮਿਲਿਆ बहुत। ਹਨਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾ ਮਨਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ हम्म। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, हाँ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, हम्म। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਗਿਆ हम्म। ਹੈਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਡੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ। देखो, कई बार सिचुएशन हो जाती जिसमें दिमाग हमारा डगमगा जाता है, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। बट मैंने कहा ना जैसे कि आपको अपना मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक करेज परमानेंट होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं कर लूंगी। यू नीड टू एडजस्ट। मैं सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है एक्टर्स, मॉडल्स की, फीमेल्स की, कि उनको ना इस लाइन में आती है ना, लैविश लाइफ चाहिए होती है। नहीं मिलेगी। आप थोड़ा सा एडजस्ट करो अपनी पर्सनल लाइफ में, धीरे धीरे काम बनने लगेंगे। ਇੱਕ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਿਸ਼ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, हाँ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, हाँ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। एक्चुअली ये खोखला, मैं सच बताऊं कि कोई कितना अमीर कैसे हो सकता है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे, ਇਹਦਾ ਉਮੀਰਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ हाँ, ਤਰੀਕੇ सबको पता है कि कौन कैसी कैसी एडजस्ट कर रहा है। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आप अगर किसी को अपनी फेक पर्सनालिटी दिखा रहे हो ना, तो सामने वाले को पता होता है। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਸੀ ਵਧੀਆ ਨਾਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਕ ਆ, ਤੇ हम्म। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਆ, हम्म। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਲੇਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੀਅਲ ਜਿੰਦਾ। ਇੱਧਰਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਜ਼ वगैरह जो भी ਹੁੰਦਾ। इंडस्ट्री छोड़ो, यहाँ दुनिया ही फेक है एक्चुअली में। हमारे रिश्तेदार तक फेक है। ये तो इंडस्ट्री की बात है। ओके। ये बात तो आप मुझसे बड़े हो और मुझसे बेहतर जानते हो। जब हमारे रिलेटिव्स तक फेक हैं, तो ये तो अपनी ਹਾਂ इंडस्ट्री के ਮਤਲਬ लोग हैं। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਐਕਟ वही। और जो आप कह रहे हो ना कॉम्प्रोमाइज वाली बात, अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात देखो ना, तो वहां तो इससे ज्यादा गंद मचा हुआ है एक्चुअली में। यहाँ पे बोल तो देते हैं, वहां तो है ना, वो नहीं होता कि कोई गाना है ना, माधुरी दीक्षित का, कुड़ियों को डाले दाना, वही वाली बात है। वहां पे लालच दिया जाता है। यहाँ पे खुलेआम बोल तो देते हैं एटलीस्ट। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ अब ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ हौली हौली। वो आपके हाथ में है, आपको यस बोलना है या नो बोलना है। ਇੱਕ ਆ ਦੱਸੋ, ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਫੀਲਡ 'ਚ? अब मिल रहा है, बेशक टैलेंट हो या ना हो। उनको लगता है कि फॉलोअर्स, ओ माय गॉड 10 मिलियन फॉलोअर्स, इतनी पब्लिक, ਜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। जो एक्टिंग नहीं आती हो। आधा काम उन्होंने ही खराब किया हुआ है, मैं सच बताऊं। ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, वही ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। कि ऑडियंस है उनके पास इंस्टाग्राम पे, उनको टीआरपी मिल जाएगी, उनका बजट निकल जाएगा। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, बट एटलीस्ट आप ऐसे बंदे को तो लो जिसके अंदर टैलेंट है एक्चुअली में, जो इतने सालों से थिएटर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है,
फिल्म्स कर बेसिकली रहा है। सोशल मीडिया ने इंडस्ट्री चेंज करती। हाँ, अब फर्क ही नहीं रह गया कि इन्फ्लुएंसर कौन है, कंटेंट क्रिएटर कौन है, मॉडल कौन है, आर्टिस्ट कौन है, एक्टर कौन है, ये पांचों चीजें ही अलग अलग है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, हम्म ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, हम्म ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਧ ਰੇਟ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 10-20% ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਹੀ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ये तो है ही, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? होता है, बिल्कुल होता है। बल्कि मैं सच बताऊं, जो अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूं, मैं अब थोड़ा सा फेवर लूंगी आर्टिस्ट मॉडल्स का, जो एक्चुअली में मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं। अब वो इतने सालों से मेहनत कर रही है लड़की, गाने कर रही है, पता नहीं उसने किन किन हालातों में क्या क्या गाने किए प्रोफेशनल होंगे, प्रॉपर हो गया। है ना। अब वो धीरे धीरे करके प्रोफेशनल हुई है, एक स्टेज पे आके पहुंची है। अब वो लड़की आएगी जिसके मान लो 2 से 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो आएगी और वो बोलेगी कि मेरे पास तो ना इतनी ऑडियंस है, आपका गाना ऐसे चला दूंगी रील डाल के। ਉੱਥੇ वो ਹੀ रील ਖਿੱਚਿਆ भी नहीं ਜਾਂਦਾ। डालेगी, वो रील भी ਗੋਲੀ नहीं ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ डालेगी, ਉੱਥੇ। ठीक है, और उसको मिल जाता है प्रोजेक्ट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ हम्म ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, वो भी ज्यादा लेती है पैसे, मॉडल से ज्यादा पैसे लेके जाते हैं। ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨत ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋਅਰ ਗੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਹਨਾ। वही, और मैं सच बताऊं, ये जो फॉलोअर्स लेके, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, वो भी मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह इंस्टाग्राम पे, वो भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो एक आर्टिस्ट है ना, उसको आर्टिस्ट वाली इज्जत मिल नहीं रही। ਘੱਟ ਗਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਕਰਕੇ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਿਸ਼ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਡਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। मॉडलिंग में ज्यादा होता है एक्चुअली में, चाहे वो मतलब मैं किसी का नाम वाम तो नहीं लूंगी, खैर ਤੁਸੀਂ हम, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट। मैं एक शो में गई थी, तो फिटिंग्स चल रही थी वहां पर, तो एक लड़की आई और थी वो इंडियन, और वो थी भी हमारी लोकल मॉडल। तो उनका टोन ही चेंज हो जाता है, हाय डार्लिंग, हाय हाउ आर यू, ये भाई हिंदी में आराम से बात कर लेना। तो ये जो फेकनेस है ना, ये कभी कभार चुभ जाती है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਣਾ, हाँ, ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ बेशक ਲਈ। EMI पर चल रही हूँ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ EMI ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ EMI ਤੇ। वही, लेकिन दिखाना है, हाँ मेरे पास भी ਨਹੀਂ iPhone ਮਤਲਬ 17 है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ अपने ऊपर है आपकी, मैं तो नहीं मानती, अगर मैं जितनी हूँ मैं वही दिखाना पसंद करूंगी। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਪੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ फेस तो नहीं किया अभी तक, ਹੂੰ या मैं इतना ज्यादा सोचती भी नहीं हूँ, ओवरथिंक नहीं करती। ਓਕੇ। मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा फेथ रखती हूँ भगवान पे कि मेरी जो थोड़ा सा? किस्मत, ज्यादा ही एक्चुअली, कि मुझे जो मिलना होगा ना, वो मेरे हाथ से जाके भी मुझे वापस मिल जाएगा। तो मैं रियल रहना पसंद करती हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ। अगर आपको काम करना है, आप, मेरे अंदर टैलेंट है, आप आओ चेक करो कि टैलेंट है कितना है, क्या मैं आपके प्रोजेक्ट में काम करने के लायक हूँ या नहीं हूँ, दैट्स ओके। मैं और काम करूँगी कि मैं इन फ्यूचर आपके साथ काम कर सकूँ। अगर हूँ तो ऑफ कोर्स वो मुझे लेंगे, मेरे साथ काम करेंगे। मेरे को ऐसा, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपनी लुक्स के ऊपर काम करो, आप अपनी स्किन केयर करो, आप अपनी इनर हेल्थ का केयर करो, ठीक है। इनर हेल्थ का मतलब ये होता है पीस भी, और वैसे भी हेल्दी खाओ। अगर आपको पैसा ही दिखाना है ना, तो खाने पीने पे दिखाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये ना हो ना कि आप वहाँ से अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। हम यही गलती करते हैं एक्चुअली, ये चाहे मॉडल्स हो, आर्टिस्ट हो, या कोई भी बंदा हो, किसी के कैसी भी लाइफ जी रहा हो, हम सबसे बड़ी गलती पता लाइफ में यही करते हैं कि हमारे पास बेशक पैसा नहीं है, हमारे पास मान लो 2000 है,
ठीक है, हम किसी से पैसे लेके 4,500 के नाइकी के जूते ले आएंगे, ठीक है, वहां से हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है कि हाँ नेक्स्ट मंथ हमारा टेंशन हो खर्चा गई है। आप अपनी मेंटल हेल्थ क्यों खराब कर रहे हो? फिर कहते हो कि हमारी तो जिंदगी ऐसी आपने की हुई है ना, आप यहाँ से क्यों नहीं शांत रह सकते हो? इसको सुकून दो, ये खराब हो जाएगा ना तो कुछ नहीं रहेगा आपके पास। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ, हम्म। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? हाँ मैं समझ गई, बट ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ। देखो सबके लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, सबके अलग अलग लेवल के स्ट्रगल्स हैं, ਜੇ सबके ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अलग ਆਪਣਾ लेवल के। ਇਲੈਬੋरेट करना चाहो। हाँ मैं कर सकती हूँ कि जैसे मेरे अंदर है ना होड़ ज्यादा है सक्सेस की, बट वो होड़ इस तरीके से है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ना डिस्टर्ब नहीं कर सकती इस होड़ के बीच में। हम्म। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं पिछले साल वापस मोहाली आई, तो आई वॉज लिटिल टेंस्ड कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स भी नहीं बनाती, क्योंकि ये ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं यहाँ तक आते आते भी। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। कुड़ियाँ दा भी लाइक वैसे भी हो जाता है ट्रस्ट इशू, मेरे को है तो है, मैं तो ओपनली बोलती हूँ, मैं नहीं करती किसी पे विश्वास। आप अगर हो जैसे हो सामने ला के रखो तो मैं विश्वास करूंगी, आप जब तक मेरे साथ ऑनेस्ट हो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। सिंपल। किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती मैं। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा क्राइसिस से गुजर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मान लो मैं कमा भी लूँगी, मतलब मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मेरे को सेल्फ रियलाइज ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास करोड़ रुपए भी आ जाए लेकिन मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो, तो क्या करूँ मैं से करोड़ रुपए का आग लगा दूँ मैं तो फिर। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। हाँ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे स्ट्रेस रहता है, फिर वो डॉक्टर पूछते हैं कि हाँ आपकी लाइफ वर्कलोड में क्या इतना चल होता रहा है, तो उसको ठीक करो ना, आप ही कर सकते हो ठीक। डॉक्टर का क्या करेगा, आपकी फीस ले लेगा, आपको समझा देगा कि हाँ अब आप ये ध्यान रखना, अब आप ये ध्यान रखना, आपको दवाइयाँ दे देगा, आप दवाइयाँ ठूसोगे जिससे आपकी इनर हेल्थ खराब हो जाएगी। ये तो ठीक हो जाएगा, इनर हेल्थ खराब हो जाएगी। दवाइयाँ है ना, सच बताऊँ जहर है, जहर ले रहे हैं हम। आप हेल्दी खाना खाओ, अपनी साफ सफाई रखो। ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। हाँ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਸ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, वही। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। फाइनेंशियली तो यहीं से तो खराब, मैं सच बताऊँ हमारा जंक फूड इतना एक्सपेंसिव आता है, बल्कि आप हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, घर का बना के खाओ। ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। हम्म। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। जरूरी भी है, दिखाना पड़ता है एक्चुअली में, क्योंकि दुनिया आपको पता है, आप जैसे दिखाओगे ना, आप दिखाओगे आप वीक हो तो आपको और तोड़ेगी। आप जब स्ट्रॉन्ग दिखाते हो ना, उसका मतलब एक्चुअली अगर गहराई में समझे तो ये है कि आप लिमिट बना रहे हो कि आप इससे ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हो, कि अगर आपने मुझे ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मैं तो थोड़ा ऐसा होता है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, काइंड ਇਹ ऑफ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ? रियल तो भूल जाओ, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ सिचुएशन ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। और गलत भी नहीं है, सब कोई अपना कंफर्ट देखेगा ना। अब आपको पता है सामने वाला आपका मेंटल हेल्थ खराब कर सकता है, तो आप क्यों जाओगे उसके पास? ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਣਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। एग्जैक्टली। मतलब तो छोड़ दो आप, वो आपको जब तक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मजबूरी का नाम गांधी। वो खराब भी नहीं करेंगे, वो आपके साथ गलत हाँ। भी कर देंगे और आपसे सॉरी भी मांग लेंगे। और वो सॉरी बोलने का मतलब पता है क्या होता है, कि वो आपकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर उन्हें काम पड़ा या फिर आप राइज कर गए तो आप उनके काम आ जाओ बस। सेफ साइड लेके चलना मैंने। हाँ, लेकिन इस चीज की भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि असली दोस्त वही होता है जो आपको हर्ट ना करे। वंस ही और शी हर्ट्स, कहानी जस्ट खत्म। लीव, जस्ट कट ऑफ, जाओ उधर से। अपना, मैं कह रही हूँ ना, मेंटल हेल्थ बचाओ। इसको बचा लोगे ना, आप पता नहीं क्या कुछ बचा लोगे, और आप क्या कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। हाँ, मैं फनी भी हूँ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, सुकून होना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ आप ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं, मतलब एक्चुअली सच you are में into आप that। जिससे भी बात कर रहे हो ना, चाहे वो हम्म। इंडस्ट्री से हो या कहीं से भी हो, हम्म। सुकून होना चाहिए। अगर आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि यार ये ऐसा निकला, तो कंफ्यूज्ड हूँ। दैट मीन्स आपकी है ना सिक्स सेंस बोल रही है कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा अलर्ट मोड ऑन कर। ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, इधर आके तो कुछ ज्यादा ही ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ समझ ਹਾਮੀ, आया। ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚਾਅ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਫਲਕਚੁਏਟ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਦੇ ਕਿ आई एम बैक। फॉर फीमेल मॉडल्स और आर्टिस्ट, तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी, पहली बात तो ना आप हर किसी के साथ मत बैठो। आपको नहीं पता सामने वाले की क्या एनर्जी है, ठीक है, आप उससे अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब वो आपको बोले कि इस इंडस्ट्री में ऐसे काम नहीं मिल सकता, आप खड़े होकर निकल लो वहाँ से। ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, तेरे में ऐसा क्या है कि तुझे मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी रोटी खाता है, मैं भी रोटी खाती हूँ, और तुमने भी तो कहीं ना कहीं जीरो से शुरू किया होगा ना। हम भी कर रहे हैं शुरू, लेट आएंगे लेकिन आएंगे तो फिर। तो पहली चीज तो ये अगर बोलेगा ना कि हाँ आपको ना इस इंडस्ट्री में ऐसे काम नहीं मिल सकता, तो उनसे ना सीधी एक बात कहो कि जैसे भी मिलता हो लेकिन मुझे आपसे तो नहीं चाहिए। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। हाँ, ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ एंटरटेन मत करो यहाँ पे किसी को इतना ज्यादा। ਪੁੱਛ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, वही, मतलब वो शुगर कोटिंग मत करो किसी की भी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने आप पर काम करो, अपना सोशल मीडिया चलाओ। मैं तो बोलती हूँ, लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया मत चलाओ, लेकिन आप चलाओ, किस वे में चलाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ उधर अच्छा सा, स्ट्रॉन्ग करो प्रोफाइल में, अपने फोटो शूट्स कराओ, अपनी जिम की वीडियोस डालो, अगर आपके अंदर डांसिंग की स्किल है तो डांस की वीडियोस डालो, सिंगिंग की वीडियोस डालो। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਆ, सोशल मीडिया कोई भी आ, स्नैपचैट तो यहाँ का ट्विटर, वो क्या बोलते हैं उसको, डेटिंग ऐप कौन सी है, टिंडर। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो स्नैपचैट है ना वो टिंडर है, एक डेटिंग ऐप है जहाँ पे ना एक लड़का ना एक ही लाइन है ना 1000 लड़की को बोलता है, और वही लड़की है ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली लाइन है ना, वो भी 1000 लड़कों को बोलती है और किसी ना किसी एक के साथ मिलती है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਹਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆ ਚਾਹੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ 4 ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ
ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਐਂਗਲ ਬੈਕ ਐਂਗਲ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੈਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਰੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ सोशल मीडिया ਤੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? अगर उनको इतना इजी लग रहा है ना तो एक बार उनके डीएम पढ़ो, उनके कमेंट्स पढ़ो, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਫ ਹੋ और ਜਾਂਦਾ। और उनके पर्सनल मैसेज पढ़ो जो आते हैं ना हिडन में, और मैसेज रिक्वेस्ट आते हैं। आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा, इतना टॉर्चर कर देते हैं, और वो लड़के ही करते हैं। अगर इस बात पे लड़के भी चलते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप कोई ऐसी काम की चीज तो डालो। डालती तो वैसे लड़की भी नहीं है। ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ सोशल मीडिया ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ? हाँ कॉमेडी। मेरी एक वेडिंग वाली वीडियो थी, शादी काइंड ऑफ कंटेंट, तो उस पर मैंने तो ऐसे ही डाल दी थी कि चल डाल दूं, और मेरा उस टाइम पे मूड भी ऐसा सही था कि और सुबह उठ के देखा तो है ना, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर 108 मिलियन हो गए थे उस पे। और कुछ भी नहीं था, मैंने तो ऐसे उसमें कुछ भी बोला हुआ था फनी सा, मतलब मैं टाइम पास कर रही थी वीडियो ਮਤਲਬ में। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਗੀ आजकल ਉਹ रफ ਰਹਿ ज्यादा ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलती है। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿ ਦਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੇਕ ਮਤਲਬ ਜੈਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਲ ਪਾਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ। तो ऐसे कंटेंट तो चलते हैं ਤੇ जिसमें ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ information ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ हो। ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। क्योंकि मेच्योरिटी से ना भागते हैं हम लोग, एक्सेप्टेंस नहीं है ना लोगों में। ਮੈਂ ਨਾ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਵਾਦ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਢੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਠੋकर ਵੱਜਦੀ। कोई नहीं समझता आज के टाइम पे। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए, शायद उनको कोई बात ऐसी क्लिक हो जाए जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो जाए। बट लोग तभी समझते हैं जब उनको खुद को ठोकर लगती है, चाहे कितना ही समझा लो। ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਠੋਕਰ हमारे ਪਈ माँ ਚੰਗੀ बाप ਰਹਿੰਦੀ ਆ। हमारे सर पर चढ़े रहते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम सुनते हैं कभी भी? फिर हम जब बड़े ਕਿੰਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हाँ, कहीं मैं तो खुद नहीं सुनती, मेरी मम्मी तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है मुझे। मेरी मम्मी तो ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, हाँ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। मम्मी को तो आदत हो गई है मेरे साथ में। अब मैं जैसे घर के कामों में थोड़ा सा कतराती हूँ, तो मेरी मम्मी कहती है कि यही काम आएगा आगे, ये है वो है। उनका ठीक है, आ जाएगा काम जब कर लूंगी। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆ? सेट है। उसके बाद दूसरी फिल्म अगर नहीं मिली ना 2-3 साल तक, फिर वो एक फिल्म भी रद्दी है। आपको कंटिन्यूटी में आना पड़ेगा। जो ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ नहीं हो ਜਾਂਦੀ। ऑडिशंस भेजो ना, इतने ऑडिशंस आते हैं। मुकेश छाबड़ा जी हैं बॉम्बे में, उनकी MCC आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च करोगे ना, हालांकि उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रही मैं, बट जितना मुझे पता है शायद किसी स्ट्रगलिंग एक्टर की, मैं भी स्ट्रगलिंग हूँ, हेल्प हो जाए। MCCC, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, ये एक पेज है उनका, वहाँ पे इतने सारे ऑडिशंस आते हैं फिल्म्स के लिए, बॉलीवुड फिल्म्स के लिए। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, बहुत ਜਿਹੜੀ सारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ कंपनी ਦੋ ਦੱਸ है, ਦਿਓ। बहुत सारी कंपनी है। आप सीधा यशराज फिल्म्स करके जो है, हम सब जानते हैं उनको, तो उनकी मेल आईडी लो, उन पे अपने खुद ही ऑडिशन बना के भेज दो कि सर आई एम अ स्ट्रगलिंग एक्टर,
और मैं काम करना चाहता हूँ, आई एम विलिंग टू डू वर्क विद यू। सो आप उनको भेजोगे, क्या पता आपको उनको क्या चीज़ पसंद आ जाए। धर्मा प्रोडक्शंस में मेल करो, मेल करना शुरू करो। एक्टर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक्टर और मॉडल्स के लिए। मॉडल्स के लिए तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनी है, निंजा कंपनी है, इनेगा कंपनी है, तो आप है, पर्पल थॉट्स हैं, ओरा टैलेंट्स हैं, विल्डर बी टैलेंट्स हैं, इतने सारी कंपनीज हैं। आप उनमें मेल करो अपनी प्रोफाइल, अपने पोलरॉइड्स, अपने ऑडिशंस, अपने अपने इंट्रोडक्शंस। उनको पसंद आएगी, वो आपको लेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ हाँ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? कि वो किसी की भी बात मान लेती हैं। जैसे उनको कोई बोलेगा कि मैं आपको ना ये फिल्म दिला सकता हूँ, आप है ना मेरा नंबर ले लो, उसी का ही नंबर मत लो। ਫਿਲਮ ਦਵਾਨੀ ਚਾਕਲੇਟ ਥੋੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। हाँ, फिल्म ऐसे तो कैसे मिल जाती, इतने सारे एक्टर्स हैं। ईंट उठाओगे ना, ईंट के नीचे 100 एक्टर रखे पड़े हैं, ऐसे है अपना इंडिया। ਹੂੰ। और पंजाब तो मैं सच बताऊं, पंजाब और हरियाणा तो मुझे ऐसा लगता है टैलेंट से भरे हुए लोगों का एक स्टेट है। हब। ईंट उठाओ और 100 आर्टिस्ट। अभी एक वो लड़की चली है ना सिंगर, उसके गाना आए हैं, वो गाँव से थी, उसका कोई वीडियो। अब देखो ना कि वो कहाँ से उठ गई। अब गांव में जाओ, इतने सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, अपने टाइम एक्टर्स। की वेट करो बेसिकली। वही वही वही। आप अपने ऊपर काम करो, सीधी बात, और उनको लाओ सामने। कई चाहे ना। सोशल मीडिया से लेके हम्म। आओ, चाहे आप मेल करो, चाहे आप स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह बॉम्बे जाके लाइन में लगो। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। हम्म। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ नहीं ਹੁੰਦੀ? क्यों नहीं होती? मेरे हिसाब से है ना, उनकी तरक्की नहीं होती जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं ना, वो काम करना ही नहीं चाहते आपके साथ। दे जस्ट वॉन्ट टू यूज यू। क्यों करेगा? क्या कोई लिंक है इस बात का कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो? कोई फिल्म से लिंक है इस बात का? नहीं है ना। और आप जैसी पता नहीं 3600 लड़कियां होंगी जिनको ये बात बोलता होगा। क्या गारंटी है कि वो आपको काम दे देगा? नहीं है ना कोई गारंटी। कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है और एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ फिर उसको फिल्म दूंगा? नहीं ना, कोई भी नहीं करता ऐसे। और जिसको सच में काम करना होता है ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करो। मतलब ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लिंक ही नहीं है। ਇਹ ये ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ये तरीके ਨਾਲ। वो जो आजकल कुछ बाहर से आए हुए ठरकी लोग हैं ना, जिनका माइंडसेट ये होता है, मैं सच बताऊं, मैं मुंह पे बोलती हूँ उनके, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। कि जो लस्ट से भरे हुए हैं, जिनको ये लगता है, इंडस्ट्री से बाहर से आए हुए लोग होते हैं, जिनको ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं और वो इजीली मान जाती है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। वो 4 पैसे फेंकेंगे और लड़कियां उनके वश में आ जाएंगी। ये उनकी बात होती है। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਨਾ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਤਲਾਬ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ 10 ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ये तो है। देखो, जो स्पेशली है ना, जो स्ट्रगलिंग जो शुरू में आती है ना, उनका दिमाग इतना नहीं चलता, उनको नहीं पता होता इस लाइन का कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। उन्हें नहीं हैंडल करना आता। एक्चुअली में दिक्कत यहाँ पे है। ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਾਡल्स ਨੂੰ, ਇਹ ऑप्शंस भी हाँ, होंगे। इससे बचो। मैं सच कह रही हूँ, कुछ कंपनीज ऐसी है जो आपको साइन करना, कुछ लोग आएंगे ऐसे, मेरे पास भी आए थे कि उन्होंने, मैं अपना बताती हूँ कि उन्होंने, नाम नहीं लूँगी मैं उनका, उन्होंने बोला कि आप है ना हमारे साथ साइन हो जाओ, हम आपको साल में 5 गाने करा देंगे। मैंने कहा 5 गाने? और क्या गारंटी है आप कराओगे? आप 5 गाने करा दोगे, अब मान लो मैं साइन नहीं कर, और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अगर बाहर काम करोगे ना तो आप हमसे पूछ के करोगे, ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, और वो नहीं करने देंगे। नहीं करा ਦਿੰਦਾ। कहेंगे कि नहीं, और ऊपर से आप अगर बाहर काम करोगे ना तो उसमें से भी वो Commission। परसेंटेज लेंगे। आप क्यों लोगे? आप, मेरे टैलेंट से मुझे काम आ रहा है ना, हम आपको क्यों दें?
आपका तो कमाने का साधन बन गया कि एक साइन करवाओ, इनसे पैसे ऐड हो। बेशक वो 5 साल में 5 गाने कराए ना कराए, आपको बाहर से काम आ रहा होगा, उनको तो कमीशन मिलता रहेगा। और फिर करो तो फिर पक्का उसमें लिखवाओ हर चीज में। मैंने बेसिकली लो भी पढ़ी हुई है, तो उसमें एक एक चीज आप लिखवाओ कि इस महीने में हर महीने एक गाना करवाएंगे इस बजट में, ये बजटिंग होगी। अपना एडवांस उठाओ, बोलना सीखो। अगर आप बोलोगे नहीं ना, फंस जाओगे। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਕਰੋ। हाँ, नहीं तो इस लाइन में मैं सच बताऊं, आई कैन हेल्प, अगर इतनी हेल्प अगर चाहिए तो, कि अगर किसी को सच में जानना है कि किस तरीके से स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, अगर पहले तो उसको जानो, पहले कितनी मॉडल्स उसने चढ़ाई हैं जो इतनी बोल रहा है वो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ? बहुत है, आपने तो खुद इतने पॉडकास्ट देखे होंगे, इतने सारे पंजाब के आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनको कंपनियां फंसा लेती हैं, गाने वाने कुछ कराती हैं नहीं, उनके ऊपर पैसा लगाती हैं नहीं, वो फंस जाते हैं ना बाहर के। भाई है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला ਬਿਲਕੁਲ काम हो ਬਿਲਕੁਲ जाता है ਬਿਲਕੁਲ फिर। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨਾ। हम्म। ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ मोहाली। ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਲੀਗ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਰੂਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ फैमिली ਦਾ। वाले तो घर ही बुला लेते, घर को बताओगे तो। ਆ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਆ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਛੱਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। हाँ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ? देखो, मेरे को शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, मैं तो बहुत घूमी हूँ, दिल्ली भी रही हूँ, पुणे भी रही हूँ, बॉम्बे भी रही हूँ मैं, काफ़ी हद तक। ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਆ। हाँ नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, बट मैं घूमी बहुत हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो अगर मुझे शेयर करना होता है ना, तो मैं लिखती हूँ। मैं पर्सनली जो करती हूँ, मैं लिखती हूँ उस चीज़ को, और फिर नेक्स्ट डे फिर पढ़ती हूँ उसको। फिर जब आप पढ़ोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि इसमें कोई बड़ा मसला था नहीं। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਕੀ हाय ਹੋ ये ਗਿਆ, क्या हो गया। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आप है ना, एक वो होता है ना मंत्र, वो बना लो कि दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। सब हो जाएगा। ये मन में सुकून जिस दिन आ गया ना आपके अंदर, आप जब खुद के साथ एंजॉय करने लग जाते हैं, मैं सच बताऊं, आप भीड़ से ज्यादा ना ਆਪਣੇ अकेले सक्सेस जल्दी पा सकते हो। ਉਹੀ ਨਵਦੀਪ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਸਦੂਕੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨੇ हम्म। ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਸਾਹਬ ਜਿਹੇ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਓਵਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ माइंडसेट है। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ। हाँ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੇ। जब अकेले होते हैं ना, तो पहली बात तो आपको खुश, मैं बताऊं दुनिया, जैसे मैं एक बार गोवा गई थी, आई वॉज स्ट्रेस्ड सो मच कि मतलब पर्सनल भी अच्छी नहीं चल रही है, प्रोफेशनल तो लंका लगे। उसका तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है। मैं कहा मैं क्या करूं क्या करूं। कुछ पैसे पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने गोवा की टिकट बुक की, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, यहाँ पे आग लगी, बॉम्ब फूटे, मेरे को नहीं मतलब उस टाइम पे मेरे को चिल करिए ये था कि आई जस्ट नीड टू रिलैक्स। हम्म। ठीक है, तो मैं गोवा निकल गई, एंड मैं रैंडम लोगों से बात करती हूँ। फिर जब आप रैंडम लोगों से बात करते हो ना, उनको जानते हो, तो अपने दुख कम लगने लग जाते हैं। ਨਾਲੇ ਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ जजमेंट। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਜੱਜ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट, ਉਹ हाँ, ਕੋਈ नहीं ਲੈਣਾ देना ਹੁੰਦਾ। तो मुझे ना वहाँ पे एक अंकल मिले, बूढ़े से थे वो स्टोन का बिजनेस था उनका, अलग अलग स्टोन्स वो सेल करते थे। तो हमारे बीच में ऐसी इन्फॉर्मेशन, अच्छा मेरी इन्फॉर्मेशनल बात बहुत होती है लोगों से, मुझे कहीं ना कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो उन्होंने मुझे स्टोन्स के बारे में बहुत बताया कि इंसान में 12 इंद्रियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे करके ये स्टोन्स ऐसे होते हैं, उन्होंने मुझे बताया।
तो उन्होंने मुझे ना जाते हुए ये बात कही, पता नहीं क्यों कही कि लाइफ में ना सबसे जो मुश्किल काम होता है ना वो होता है खुद से खुद को खुश रखना। बहुत डीप वाला। आप खुश रहना सीख जाओ हर मेरी मम्मा एक बात कहती है कि है ना, चाहे हरियाणवी में कहती है वो कि चाहे तो हंस के काट लो, चाहे रो के काट ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ लो, ਪੈਣੀ ਆ। काटनी है आपने। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ, नहीं सुनती हूँ, मैं मानती हूँ उनकी तो। ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ हाँ, ਹਾਂ। तो मैं खुश ਚਲ ਇੱਕ ऐसे। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, हाँ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰੋਏ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ? मैं रोई थी, याद नहीं है वैसे तो मुझे। हाँ, मैं 2-3 महीने पहले रोई थी। रीजन? रीजन कि कुछ हो नहीं रहा था, खाली बैठी थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, कुछ हो नहीं रहा। मैं एक्चुअली पर्सनालिटी भी ऐसी हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए। हम्म तो मैंने कहा कुछ कर भी नहीं रही हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है, किसी से मिल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं लिसने नहीं रही हूँ, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हम्म है ना, किसी से क्या ही कहूँ जब। तो समझ सा नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर उस टाइम पे ना मैं मम्मी को कॉल करके रो पड़ी। मैंने कहा मम्मी हो नहीं रहा मुझसे, मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मम्मी ने ना ऐसे 2-3 गालियाँ कि मैंने कहा अब ठीक हूँ। डोज मिल गया ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵਾਂ। मम्मी ने 2-4 गालियाँ बकी, मेरे को मैं क्या ठीक है अब मैं, हाँ मैं कर लूंगी, अब तो मैं करती हूँ, चलो हाँ मैं काम। रोना तो अच्छा होता है, आँख साफ हो जाती है। यही कह के गुजारा वा हाले भी, नो अदर ऑप्शन। नहीं सच्ची में यार, रोने से आँख साफ होती है, मन हल्का होता है, स्ट्रेस ਮਨ रिलीज ਹਲਕਾ ਹੋ होता ਜਾਂਦਾ, है। ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। भगवान की भी मेडिसिन नहीं है रोना धोना, रो लेना चाहिए कभी कभी। वर्स्ट प्रपोज किया है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं ऐसे तो कुछ वर्स्ट तो हाँ एक्चुअली वर्स्ट आया था। उसने तो ऐसे ही बेड़ा गर्क कर दिया था मेरा, जिंदगी जहन्नुम कर दी थी उस आदमी ने तो मेरी। मेरे को यही नहीं पता वो आज तक है कौन। मैसेजेस? मैसेजेस नहीं, मैं जानती नहीं थी, कुछ नहीं था, पता नहीं कहाँ से क्या बनूस गढ़ी थी उसने, क्या पता कराया मेरे बारे में। मैसेजेस करना, थ्रेटन करना शुरू कर दिया था उसने मेरे को, ये यार शादी कर वरना नहीं तो मार दूंगा। फिर मैंने ना अपनी मम्मी को बताया, फिर मेरी मम्मी वही हरियाणा वाली, तू आगा फिर देखूंगी तने। मैं मैंने कहा चलो अब, मैंने ब्लॉक ब्लू को मार दिया, लेकिन उसने करा 2-3 4 खूब परेशान किया। ਹੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। साइको नहीं होते, साइको वो था एक्चुअली में। ਤੇ ਫਨੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? फनी तो शेर शायरी बहुत मारते हैं लड़के। ਕਾਪੀ पेस्ट बहुत जल्दी है। कॉपी पेस्ट तो पता नहीं मेरे को। हाँ वैसे तो है एक्चुअली, मेरे को नहीं पता ना, प्रूफ नहीं है मेरे पास क्या ही। वैसे तो ये तो फॉर्मूला होता है उनका, कॉपी पेस्ट तो ਜਿਵੇਂ ਲਾ इतना ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ, इतना कंप्यूटर में नहीं होता कॉपी पेस्ट। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਜੱਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, जच गया। ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਦਾ ਵੇ ਹੀ ਸੈਡ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਨਾ, हम्म। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ? मैं क्या देखो तो सही ਹੈ कौन ਕੌਣ ਆ, इसकी बुद्धि ਸੈੱਟ है। ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? मैं देखती हूँ पहले तो कि हाँ कि मतलब गाली खाने वाले काम तो नहीं कर रही मैं कहीं। मैं किसी दिन दोस्तों को दिखाऊं, छी। तो ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, आज ਰੂਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। आज के टाइम पे, आज के टाइम पे नहीं मिलता। और अगर किसी को लगता है तो फिर उसको बिल्ली दो, बिल्ली पालेगा, वहम थोड़ा ना पाले तो अच्छा है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? शिव, आई बिलीव इन शिवा। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, नहीं ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਸ਼ਿਵਾ, ਜਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। शायद हो भी सकता है, बट हाँ मेरे लिए शिवा है सब कुछ, कि मेरे को बस उन्हीं में ही अच्छा लगता है। मैं बात भी उन्हीं से शेयर करती हूँ एक्चुअली सबसे। अगर अपनी बिल्कुल मन की बात बताऊँ ना, तो जब मुझे लगता है ना कि किससे शेयर करूँ, कौन है सुनने वाला, सुन लेते हैं, समझ कौन लेगा,
और समझ लेगा तो निकालेगा कौन? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਹਨਾ ਹਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੱਸ ਪਏ। कैसे? ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, हाँ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਹੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। और उसके अंदर अपने आप दिमाग नहीं है जो। ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ। जब अगर लगे ना लाइफ में कि अब आप फंस गए हो, क्या करूं, तो मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और ऐसी जो वाइब्रेशन आती है ना हाँ कि अब ठीक है, अब तो वो संभालेंगे, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो अपने आप बनाएंगे आपके दोस्त, अच्छे से चुन चुन के लाएंगे कि ये ले, ये तेरा अच्छा ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੇ दोस्त है। ਆਪਣ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਆਪਣਾ। मेरी ਯਾਰੀ नहीं ਦੋਸਤੀ बनती ਘੱਟ हर ਹੀ किसी ਹੁੰਦੀ ਆ से। ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। एक्चुअली आजकल मोस्टली लोग ऐसे भी है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। बिल्कुल हो सकते हैं, ਹਾਂ हाँ, लेकिन जब तक हो सकते हैं जब तक उस लड़के के मन में उस लड़की के लिए ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, काइंड ऑफ दोनों ਦੋਨੋਂ। दोस्ती से आगे चीज ना बढ़े, तो दिमाग में भी ना आए। ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ। सेल्फ कंट्रोल इसी को तो बोलते हैं कि अपनी, कहते नहीं है कि अपने मन पे काबू करो। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਲਿਮਿਟ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਆ। जब आप दोस्त बनते हो ना, आपको पता चलता है कि वो लड़का या वो लड़की कितने लड़कों या लड़कियों से बात करता है ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ और ਕੁਝ। किस तरीके से बात करता है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है उसी टाइम पे। और वैसे भी आजकल तो हर कोई बैकअप लेके चलता है, मैं सच बताऊं, दिस इज द रियलिटी। आपको अगर लगता है ना कि आपके वाला बाबू अलग है, तो अलग नहीं है वो उसने अलग से रखी हुई है एक। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। हाँ, और वो जब निकालेगा उसका चैप्टर, जब आप डिलीट हो जाओगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸੀ? जब मेरे लिए तो देखो मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, तो मेरी वर्स्ट सिचुएशन वैसे तो काफी बार आई है। ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? समझ नहीं आ रहा, बट हाँ, मैं मेरे फादर का सुन के ना, जब मेरे को पता चला था, जिसमें मैं छोटी थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो मतलब 2.5 साल की होंगी लगभग में। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, मुझे झूठ बोल दिया कि वो तो अपना इलाज कराने गए हैं, ऐसे आ जाएंगे। ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਕੇ ਜਾਂ हाँ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ पता ही नहीं था उस टाइम पे, तो ऐसे ही बूढ़ी चक्के इधर उधर उधर घूमती रहती थी मैं कि ठीक है आ जाएंगे अपना। इतना दिमाग में नहीं लगाती थी मैं, पूछती तो थी मैं कि कब आएंगे, बात करा दो। फिर मुझे ना एकदम से पता चला, किसी गली के बच्चे ने आके मुझे बोला, ऐसे घमंड में आके, मतलब मेरा ना ईगो वो कर दिया उसने उस दिन। तो उस दिन उसने बताया कि अब नहीं आएगा, ये है वो है। तो फिर मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई कि ये उसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, और ऊपर से था भी मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था। तो इतना ज़्यादा गुस्सा होने के बाद मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ, आपने झूठ बोला मुझसे, और मुझे झूठ से नफरत है। मुझे झूठ बोल देना तब मेरे को रोना आ जाता है, अगर रोने की बात करो, इसलिए मैं लोग ही नहीं रखती कि ना होंगे लोग, ना होगा झूठ। तो फिर मेरे को पता चला, अब समझ में आता, उन्होंने मेरा मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे झूठ बोला था। तो तब मैं सबसे ज्यादा टूटी थी, और वो मन में। ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 5 साल की होंगी शायद। तो थोड़ा सा तब मेरे को फील हुआ था कि हाँ। फिर वो घर भी कर गई थी, उसको ओवरकम करने में भी मेरे को काफ़ी साल लगे हैं। मैं शायद 20 साल की होंगे तब जाके ओवरकम हुई होंगी मैं। इवन अभी भी जो कभी कभार आ जाता है दिमाग में मेरे, बट फिर मैं ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ?
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ हाँ इंसान हूँ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ आ ਗੱਲ ਕਰਦਾ जाता है कई बार बहुत सारी चीज़ें सोच के। कई बार तो ਇਸ ठीक। ਸਮਟਾਈਮ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ हाँ मैं हुई थी, मैं बताती हूँ कैसे। मैं ना कसोल गई हुई थी ਹੂੰ और कोई प्लान नहीं था, मणिकरण जाने का प्लान बन गया कि चलो मणिकरण चलते हैं। मैं कहा ठीक है। और मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे नहीं पता था वहाँ पे शिव जी का मंदिर, और मैं शिव जी से ऑलरेडी इतनी कनेक्टेड हूँ, उनको देख के तो मुझे ऐसे हो जाता मेरी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, ऐसी फीलिंग होती है मेरे को तो भगवान शिव जी के लिए। तो मैं मंदिर में गई और उस टाइम पे ऐसे चल भी नहीं रहा था, बल्कि ये था कि मैं तो फोटो वोटो खींचूंगी, अच्छी सी वीडियोस वीडियोस बनाऊंगी, और मैंने साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी। तो जैसे मैं जिनके साथ गई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं ना अपने देख के आई हूँ कहीं गिर विर जाए। तो मेरे अंदर से ना अपने आप ही निकल गया कि वो सामने है ना, वो अपने आप संभाल लेंगे। पता नहीं कैसे निकला, और मैंने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, मेरे आंसू बहना शुरू। मैं 3 घंटे रोई वहां पे। और फिर मैंने ना अपने पल्लू से अपना मुंह ढक लिया कि मुझे कोई देखे ना ऐसे रोते हुए। मेरे को थोड़ा सा ऐसे होता है कि लोग क्या सोचेंगे, उस टाइम पे मैं ज़्यादा सोचती भी थी। तो फिर उसके बाद रोती रही, फिर दिमाग में है कि मैं रो क्यों रही हूँ, मतलब कोई तो रीज़न होगा। फिर मेरा दिमाग ऐसे 360 घूम गया कि नहीं, मतलब पूरा ऐसे नहीं होता 1 मिनट में आपको अगर आपकी पूरी लाइफ दिखा दे तो कैसे दिखेगी, उस तरीके से हुआ ऐसे। क्लिक 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 क्लिक, पूरा से सामने आ गया चिट्ठा। फिर मन से सिर्फ एक सवाल आया, क्यों, क्यों हुआ मेरे साथ ही। मैंने कभी किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रखी, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा कभी भी, बल्कि किसी ने अगर बुरा किया भी है तो भी मैंने उसके लिए बोला कि इसका भी भला हो। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने जाके खड़ी हो गई। फिर मेरे को अंदर से आया कि भगवान चुप करा। मेरे को रोना नहीं पसंद एक्चुअली, वो गुस्सा आता है जब मैं रोती हूँ कि मैं रो क्यों रही हूँ, मैं नहीं रो सकती, ऐसे रहता है मेरे को। बचपना भी कह लो इसको, बट मेरे को रोना बिल्कुल नहीं पसंद। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ हाइड नहीं, मैं ख़त्म ही कर देना चाहती हूँ। ਬਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹਾਈਡ ਹੋ नहीं ਸਕਦਾ हो सकता, आई नो दैट, बट मैं चाहती हूँ कि रोना आए ही ना। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਏ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ फिर ਨਹੀਂ नहीं, बट मैं हल्की होके मैं चुप होके गई, जितनी मैं एक्साइटेड थी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ इधर। ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हम्म। ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ मुझे जवाब अब मिला जब मैं वाराणसी जाके आई थी। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ पहले मैं वो बताती हूँ। तो मैंने ना भगवान से कहा, भगवान जी प्लीज़ मुझे चुप करा दो, ऐसे कोई देख लेगा, ऐसे बेइज्जती हो ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ जाएगी। ਲੱਗਦਾ हाँ बेइज्जती हो जाएगी मेरी, कोई देख लेगा, प्लीज़ मुझे चुप करा दो अब तो। फिर फिर मैंने ना मेरे को फिर ऐसे आया कि भगवान मुझे कहीं देख रहे, पता नहीं क्या था, क्या दिमाग में आ रहा था, बड़ा हलचल सी मच गई थी दिमाग में मेरे। तो फिर है ना मैंने इधर उधर देखा, फिर मेरे को भी है मुझे भी देखना है। तो फिर मैं उसके बाद केदारनाथ गई। ये देखो कि कैसे सर्कल चल रहा है कि उन्होंने ना अपने आप से मिलवाने के लिए मुझे केदारनाथ भी बुला लिया, और मैं अब जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ ना, शिव भगवान शिव जी की प्लेसेस पर ही जा रही हूँ। बाय गॉड ग्रेस आई एम सो ब्लेस्ड। और अभी मैं वाराणसी जाके आई हूँ रिसेंट, अभी दिसंबर में। तो वहाँ पे मुझे एक रैंडम पंडित मिला, मैं तो व्लॉग शूट कर रही थी ऐसे ऐसे करके, और वो आया एकदम से। पता नहीं उसको देख के भी मैं ऐसे हो गई, और पीछे ऐसे गाय खड़ी, और मैं तो ऐसे ਸਾਧ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ हाँ काइंड ऑफ। और उन्होंने बड़ी ज्ञान की बात बताई मेरे को। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ना मेरे पापा की बड़ी याद आती है ना, मेरे को बड़ा वो होता है कि मेरे को कहीं मिल जाए, बस वो एक बार मेरे को देखना है उनको। क्या, फिर उन्होंने मुझे समझाया और वो समझ भी आ गई, पता नहीं उनके कहने से, कि वो जहाँ पे है ना उनको छोड़ दो, उनको तंग नहीं करते। ਗਿਆਨ वाली ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸो ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס भी थोड़ा ज्ञान ले ले उन्होंने मेरे को एक बात कही, आपको जीवन में अगर कोई इंसान मिले, चाहे वो हमारे फील्ड से हो, चाहे जैसे भी हो, आपका जैसा भी इंसान रिश्ता हो, इंसान मिले, तो उसमें 3 चीज़ होनी चाहिए। 3 चीज़। और मैं कह सकती हूँ बंदा आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। जवाबदारी, हम्म ईमानदारी हम्म और वफादारी। हम्म अगर एक भी चीज़ मिसिंग है ना, तो वहाँ से चले जाओ। जवाबदारी में इंसान जवाब देने से भागता है, हम्म ठीक
ठीक है, वफादारी में बंदा दोगला होता है, आपके हम्म सामने अपना उसको पहचानो। हर एक दे अपने और ईमानदारी, कि वो ईमानदार कितना है, आपके साथ गलत में कैसे है और अच्छे में कैसा है। और अगर मान लो आप गलत भी हो, तो अगर आपका इंसान होगा ना, तो मेरा पर्सपेक्टिव तो ये कि वो दूसरे के सामने बेशक आपकी साइड ले ले, लेकिन आपको पर्सनली जाके समझाए तूने गलत किया, या आगे से मत करियो। छोड़ता नहीं है वो, लेकिन ਸਮਟਾਈਮਸ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, हम्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ हम्म ਹੈਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਬਲੀਆਂ मजा ਮਾਰਨ आता ਦਾ है ਹੈਨਾ, सुनने ਫੇਰ में। ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। फिर तो ये आता है कि ठीक है भैया, बोलो, कोई बात नहीं, मैं सुन रही हूँ, आपका मन हल्का हो जाएगा। एक्चुअली मेरा तो यही होता है कि मैं छोड़ देती हूँ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰੈਸ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਹਨਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਡਮ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਮੇਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ कि नहीं? मतलब थोड़ा सा ये होता है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई मेरी फील्ड से हट के इंसान मिले, अगर वो मुझे जानता है तो अलग बात है, हम्म ठीक है, बट क्यूरियोसिटी होती है उसमें जानने की हम्म आपको। हम्म बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें नहीं बतानी, पहले सामने वाले को जानो कि कौन पूछ रहा है आपसे सवाल। ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਖੋਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। हाँ, फिर की रहेगा पीछे। अपने आप को ना थोड़ा सा समेट के रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ਲਾਸਟ ਤੇ हम्म, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? आप पहली बात तो डिसाइड करो कि आप करना क्या चाहते हो। मॉडलिंग करना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एक्टिंग में आना चाहते हो। ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉपर मॉडल बनना चाहते हो तो आप अपनी हाइट पे काम करो, अपने फिजिक पे काम करो। फिजिक पे तो चलो आपको हर फील्ड में ही काम करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में भी, बट आप अपनी वोकेबलरी पे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे, और अपनी डाइट पे, अपने शेड्यूल में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनना होगा आपको, फिर आप सक्सेस पा सकते हो। और मॉडलिंग के लिए आपको एजेंसीज में अप्लाई करो आप, जैसे इनेगा एजेंसी है, निंजा एजेंसी है, ओरा टैलेंट्स है, तवाब है, विल्डर भी है, पर्पल थॉट्स है, बहुत सारी एजेंसीज है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, मॉडलिंग टॉप इंडिया 10 मॉडलिंग एजेंसीज, ऊपर ही आ जाएंगी। आप उनको मेल करो अपने पोलरॉइड्स, अपने पोर्टफोलियो, अपना इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज़, इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर का तो आप सबको पता ही है कि अपना फ़ोन खोलो, बनाओ जो भी आपको बनाना है। एक्टिंग के लिए आप थिएटर ज्वाइन करो, और थिएटर के साथ साथ आपको लिंकलाइजेशन, सोशलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन सोच समझ के। आप खुद डिसाइड करो कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए प्रोग्रेसिव है। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाओ कि क्यों नहीं जा सकते, उस बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है। ऑडिशंस दो सबसे ज़्यादा, जितने ऑडिशंस दोगे फिल्म्स के लिए उतना अच्छा है। आप गूगल पे सर्च करो कि टॉप इंडिया कास्टिंग एजेंसीज फॉर एक्टिंग, तो वहाँ पे एजेंसीज आ जाएंगी, वहाँ पे आप उनका नंबर निकालो, गूगल पे मिल जाता है आजकल सब कुछ, उनको फॉरवर्ड करो अपनी प्रोफाइल, अपना इंट्रोडक्शन बनाओ, ऑडिशन बनाओ। पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है, अच्छा फोटोशूट कराओ किसी अच्छे फोटोग्राफर को लेके। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आप इन सब चीज़ों में से कुछ भी करो ना, किसी को पैसे मत दो। हम्म इस लाइन में ना पैसे मांगते कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम आप कोई कुछ नहीं कराएगा, ठगते हैं सब। तो पैसे किसी को मत दो, आप अपने स्किल पे आगे बढ़ो। आप अच्छे हो, टैलेंटेड हो, अगर आपको आपके मन में आया ना कि आपको इस लाइन में जाना है, दैट मीन्स आप टैलेंटेड हो। ऐसे किसी के मन में नहीं आता, बस अपने ऊपर काम करो। ਸੋ ਵੀਰੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू।